Hello students, today we are going to study the function of tubules. Before studying the function of tubule, let's discuss about the structure of nephron again, so that it will be easy for us to study the different function of these tubules. So as you can see, this is the structure of nephron, and this is glomerulus, this is Bowman capsule, this is PCT, that is proximal convoluted tubule, this is Henle loop, in which this is descending limb and this is ascending limb, and this coil part is distal convoluted tubule, and this straight part is collecting duct. So today we are going to study the function of these different parts of nephron. So let's start with PCT. PCT. As earlier we have studied about the glomerulus and Bowman capsule both. So now we are studying about the tubule. That means from this structure till this structure. Today we are going to study from PCT to DCT till collecting duct. Okay. So let's start with proximal convoluted tubule, that is PCT. Okay. So proximal convoluted tubule, that is also known as PCT. So PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium, which increase the surface area for reabsorption. Before I will explain it to you, let's see what is simple cuboidal brush border epithelium. So this is the example of simple epithelium. Okay, and you can see the cilia on the above side. Okay, this is an example of simple epithelium. तो हम बात कर रहे हैं पीसीटी की, तो हम बोल रहे हैं कि जो पीसीटी की इंटरनल लाइनिंग है, यानी अगर अंदर से कैसे बना हुआ है, तो वो अंदर से बना हुआ है सिंपल एपिथेलियम सेल से, और उनके ऊपर क्या है, सीलियाज है. ठीक है, और ये जो सीलियाज और इस तरह की जो कंसंट्रेशन है सिंपल एपिथेलियम सेल के कारण क्या होता है, इट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया. सरफेस एरिया तो इंक्रीज होता ही है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन. ओके, क्योंकि हमने अर्लियर अभी नोट्स में हमने पढ़ा ही है कि कैसे बहुत सारे जो लिक्विड है, अबाउट 1200 ml ऑफ सबस्ट्रेट इज अब्जॉर्ब या ब्लड इज अब्जॉर्ब, लेकिन ओनली 1.2 लीटर्स इज सिक्रेटेड, यूरिन इज सिक्रेटेड. सो जो सारा कुछ ब्लड जो रीअब्जॉर्ब्ड होता है पीसीटी में, जो पीसीटी के लाइंस हैं वो किससे बनी हुई है, ये देखिए, इट इज कॉलमुलर सेल, इट इज सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है, तो इस तरह के सेल से जो है पीसीटी जो होता है वो बना हुआ होता है. सो देखिए, पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल cuboidal ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और दैट हेल्प इन reabsorption. Okay, nearly all the essential nutrients and 90 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. तो देखिए, essential nutrients जितने भी हैं they are absorbed at PCT. Essential nutrients are carbohydrate, fat, proteins, and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. Okay, how much? 70 to 80% of electrolytes. Okay, तो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है वो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion, ammonia, potassium ion into the filtrate and by absorption of bicarbonate from air. अब देखिए पीसीटी क्या करता है, पीएच मेंटेन रखता है, आयनिक बैलेंस बॉडी का बैलेंस करता है,
ताकि, और एक सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है किसका, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन, इनका सेलेक्टिव सिक्रेशन करके वो पीएच बैलेंस को मेंटेन कर पाता है और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर पाता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। सो see in this diagram, this is the example, sorry, this is the diagram of PCT। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि here PCT do the secretion of हाइड्रोजन आयन, अमोनियम, पोटेशियम आयन टू द फिल्ट्रेट, दिख रहा होगा आपको, न्यूट्रिएंट्स, प्रॉक्सिमल कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ देखिए, और इट्स हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Henry's loop। नाउ नेक्स्ट इज Henry loop, and as you all know, it consists of two arms, okay, descending and ascending limb, which also help in the counter current effect, and this counter current effect we will study in next topic. Now start with Henry loop. What is the function of Henry loop? तो reabsorption is minimum in its ascending limb. Okay. However, this region play a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary intestinal fluid. Okay. जो ascending limb है और इस हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ, यहाँ पर reabsorption तो क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इस हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ osmolarity of medullary intestinal fluid. Next, the descending limb of a loop of Henry is permeable to water but also impermeable to electrolytes. Okay, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं descending की बात कर रहे हैं, तो we are talking about the descending limb of Henry's loop, and descending limb में क्या होता है, it is permeable to water, ठीक है, but also impermeable to electrolytes। यहाँ पर वाटर तो एंटर कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एंटर नहीं कर पाते। आपकी बुक में इन्होंने गलत एरो शो किया है, इट इज़ परमेबल टू वाटर पर इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, यहाँ पर वाटर एंटर कर पाते हैं तो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा बेटा, और पतला हो जाएगा। नाउ द असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमेबल टू वाटर। यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्फ होगी that is impermeable to water, the water will unable to escape from air and but allow transport of electrolytes actively or passively। तो you can see these electrolytes are passing through air, यहाँ से electrons जो हैं electrolytes वो पास हो जाएंगे। Therefore, as the concentrated filtrated pass upward, it get diluted to the passage of electrolyte to the medullary fluid। अब देखिए यहाँ से वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या हुई, कंसंट्रेशन कम हुई, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हुए, तो ऑब्वियसली जो भी सब्सटेंस के अंदर आ रहा है दैट विल बी डाइल्यूट इन नेचर ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टल कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल। सो नेक्स्ट इज डिस्टल कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। यहाँ पर क्या होते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कंडीशनल की कुछ जगह पे सोडियम एब्जॉर्ब होगा, कहीं पे वाटर एब्जॉर्ब बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो DCT इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर होता है, प्लस इट्स हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, प्लस एक सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया also take place which help in the maintenance of pH and sodium and potassium balance in blood. Let's see
it with the help of the diagram. Yes, you can see here the sodium and absorption of potassium take place here and the reabsorption of bicarbonate also take place here. ठीक है, a selective secretion of hydrogen ions and potassium ions also take place in this DCT. Now next segment is collecting duct. This long duct extends from cortex of the kidney to the inner part of the medulla. These straight tubes, collecting ducts, this extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla. Okay, and large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. Okay, large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है आपको पता ही है, किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज मेडुला एंड कॉर्टेक्स. तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ये दोनों ही पार्ट्स में होते हैं किडनी के, दैट इज मेडुला एंड कॉर्टेक्स में. ठीक है, और यहाँ पर जितना भी ज़्यादा वाटर है अगर जो ब्लड में अभी आया है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ सोडियम आयन, तो ये जो सारा जो वाटर है वो यहाँ पर अगेन रीअब्जॉर्ब हो जाता है. उसी की वजह से जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है. हमने अर्लियर पढ़ा है कि कितना 1200 ml ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एब्स्ट्रैक्ट वाटर एब्जॉर्ब, लेकिन 1.2 लीटर्स यूरिन सेक्रेट करते हैं. तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हर जगह पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और मेजरली कहाँ पर हो जाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट में. ओके, दिस सेगमेंट्स अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी. ओके, कुछ जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाता है टू कीप द ऑस्मोलरिटी. ओके, it also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of hydrogen and potassium ion. Okay, now the next topic is mechanism of concentration of the filtrate. कि how this filtrate is concentrated. Okay, mammals have the ability to maintain a concentrated urine. अब मैमल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना जो यूरिन है वो उनका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बन सकता है. तो ये किसके द्वारा होता है? द हेनरी लूप एंड वसा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट डिस्कस अबाउट व्हाट इज वसा रेक्टा. ओके, so वसा रेक्टा ऑफ किडनी आर स्ट्रेट आर्टरियोल्स. ओके, जो हम बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स रहती हैं, तो जो हेनरी लूप रहता है उसके बाहर आएंगे, अभी मैं आपको पिक्चर भी शो करूँगी. तो उसके बाहर जो आर्टरियोल्स रहते हैं और जो स्ट्रेट वेनिकल्स रहते हैं किडनी के बाहर, किडनी के अंदर, एंड दीज आर द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी दैट एंटर द मेडुला एज द स्ट्रेट आर्टरियोल्स एंड लीव द मेडुला टू असेंड टू द कॉर्टेक्स द स्ट्रेट वेनिकल. दे लाई पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनरी. ओके, तो बेटा ये जो आर्टरीज और वेन्स जो मतलब हम अगर मैं आपको सिंपलिसिटी में बताऊं तो जो ब्लड वेसल्स हैं जो हेनरी लूप की चारों तरफ कॉइल्ड होकर रखी हैं, देट आर नोन एज वासा रेक्टा. ओके, एक बार मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ. यहाँ देखिए, ये जो आपको ये रेड कलर का जो दिख रहा है, यू कैन कॉल इट रेड और मैरून. तो ये जो आपको येलो के ऊपर ये आपको दिख रही है ना, ये ब्लड वेसल्स, ये एफरेंट आर्टरियोल्स, और ये कॉइल्ड है ना, हेनरी लूप के दोनों तरफ ये कॉइल्ड है. ये इसको बोला जाता है वासा रेक्टा. ये देखिए यहाँ लेबलिंग भी कर रखी है वासा रेक्टा. तो यहाँ हेनरी लूप के अंदर तो जो आ रहा है, यहाँ ग्लोमरस से लिक्विड आ रहा है, प्लस यहाँ पर जो वासा रेक्टा से इसमें ऐड ऑन किया जाता है. तो यहाँ पर अभी हमने देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, कई एब्जॉर्ब हो रहे थे. डिसेंडिंग इम्परमिएबल हो जाती है वाटर पे, यहाँ पे परमिएबल हो जाती है वाटर के लिए. तो दे ऑल प्ले इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, तो यहाँ पे ये वासा रेक्टा प्लस हेनरी लूप दोनों की इंटरनल मूवमेंट या ऑस्मोलरिटी के कारण जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेशन उनकी चेंज हो जाती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक
Okay, the flow of filtrate in the two limbs of Henry loop is in opposite direction and thus form a counter current. अब देखिए Henry loop हमारे जो दो थे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वन इज असेंडिंग एंड अदर वन इज डिसेंडिंग. ओके, सॉरी, फर्स्ट वन इज डिसेंडिंग एंड अदर वन इज असेंडिंग. ओके, और दोनों में हमने देखा दोनों के फंक्शंस डिफरेंस हैं. तो दे कॉज काउंटर करंट. द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न. और जो इनकी हैंडल लूप के बाहर जो वासा रेक्टा लगा है उनमें भी ये काउंटर करंट पैटर्न होगा. द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडल लूप and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium, that is from 300 osmol per liter in the cortex to about 1200 osmo per liter in the inner medulla. यहाँ देख सकते हैं आप. अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर उनकी काउंटर करंट की वजह से इनकी ऑस्मोलेटरी जो होती है इनर मेडुला के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है. यू कैन सी यहाँ 300 जो हमारी यूनिट है 300 मीटर ऑस्मो पर लीटर से लेकर कहाँ तक हो गई है 1200 तक. ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके बुक में जो डायग्राम है, एक मिनट, ये है वासा रेक्टा, सॉरी ये है हैंडल लूप का और दिस इज वासा रेक्टा. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं इट वॉज 300 और 300 से कहाँ तक रेज हो गया 1200. ठीक है, यहाँ पर भी 300 था, इट इज रेज टू टिल 1200. ओके, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया. और ये किसके द्वारा हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए NaCl और यूरिया की वजह से. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इट इज रिटन यूरिया. तो ये NaCl और यूरिया की कंसंट्रेशन के कारण ये ग्रेडियंट कॉज हो जाता है. NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल लूप व्हिच इज एक्सटेंड बाय द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. तो यहाँ जो है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ असेंडिंग लूप के द्वारा यूरिया आता है और ये डिसेंडिंग लूप के द्वारा इसमें कॉज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है और यहाँ से जाता है ये इसमें वासा रेक्टा में. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending loop of Henry loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henry loop and vasa recta is called counter current mechanism. Okay, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगेन, यहाँ से ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से अगेन डिक्रीज हो रहा है 300 से यहाँ पर. तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इन हैंडल लूप और वासा रेक्टा, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके, and this mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, and the presence of such interstitial gradient help in easy passage of water from the collecting tubule, thereby constraining the filtrate. And human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. और ये सब जो है इसकी वजह से humans are able to concentrate their filtrate, or we can say concentrate their urine. Okay, so here ends our topic. Thank you.